Good morning, dear students. Good morning, ma'am. While solving the example, did you found any difficulty? No, ma'am. No, no, ma'am. Hello. Ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. So you are able to solve all the steps very properly. Are you able to find out the support, confidence, lift, and leverage? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So which rule is stronger? Yes, ma'am. Which rule is stronger? Can anybody tell which rule is stronger? What is the output A of the? tends to C and D. Yeah. It tends to C. A C tends and to D. C and A D. tends B tends to C. B tends to It C. is to see, ma'am. Yes. Okay. Some are telling A tends to C, some are telling B tends to C. Okay. So let's see. I will just give the answer in your Google Classroom or in your WhatsApp. So you can check out the answer just by comparing your answer with my answer. Okay. So just see the a priori algorithm, because many of the times the question is also asked, write down the a priori algorithm or explain the a priori algorithm. So you can write down step by step in the form of pseudo code, and or you can take an example, and just by taking a small example and solving that example, you can explain that algorithm also, or you can write down this kind of algorithm. Now just see here, I am just explaining the algorithm here. So you can see that in the a priori algorithm, the two steps are very important. One is a joining step, which we call as the candidate generation step, and second is a pruning step. So in pruning step, we just compare the item set with a minimum support count and find out which are the frequent item set. So in the algorithm, only these two steps are very important. So this is a pseudo code for the step that we have followed, where ck is called as the candidate item of size k. Okay, so k means if it is a step 1, so in step 1 your item set will contain only one item. Okay, in step 2 your candidate generation step 2, your item set will contain the two items in your set. So likewise, jitne alag alag next step pe jaoge, in every next step you will find out in your item set that many items you have to combine. Then lk means the frequent item set of size k. Means if our value of k, here k is our minimum support that we have to give. In first L1 means the frequent item set in a starting. Then again we will start with a for loop from k equal to 1 and until the lk, मतलब जो items दिए है वो value क्या नहीं हो जाते, नल नहीं हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि आपके स्टेप में आप कब तक गए हो, जब तक आपको ऐसा टेबल नहीं मिल जाता है कि जिसमें आइटम सेट आया है लेकिन जिनका मिनिमम सपोर्ट काउंट जो है, ओके वो हमारे दिए गए मिनिमम सपोर्ट काउंट से लेस है. सो दैट टाइम यू विल सी दैट कि आपका जो टेबल है वो क्या हो गया है, ब्लैंक हो जाता है. देन यू गो विद अ प्रीवियस स्टेप. सो तब तक आपको क्या करना है, ये जो स्टेप्स है रिपीट करते जाने. व्हाट स्टेप वी आर रिपीटिंग, वी आर जस्ट first we are just generating the candidate set from previous step, that is lk step. हर प्रीवियस स्टेप में जो आइटम सेट है उसका कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट आइटम सेट के साथ लगाते हैं एंड वी विल कॉल इट एज अ candidate generation. Okay, and after candidate generation what we are doing, we are checking that set in a transaction, how many times that frequent that item set are coming in your transaction table. So this candidate generated item we are checking in our transaction table in your database. Okay, and if the value of that candidate set is equal to minimum support या से equal or greater है, तो वो values कहाँ पे जाएंगे, we will consider it in our next step, जिसको हम बोलते हैं pruning step. pruning step के बाद जो value बचेगी वो क्या बन जाएगा हमारा l k plus 1 हो जाएगा. So likewise you have to just perform these steps until you will find out a phi set. मतलब जब तक पूरे जो सेट है वो ब्लैंक नहीं हो जाते. जैसे ब्लैंक हो जाएंगे हम प्रीवियस स्टेप पे जाते हैं और जो लास्ट वैल्यूज आई हुई होगी that will consider as these are the final rules we have concluded.
and then we will check their support, then its confidence, lift and leverage. But you can see in this whole algorithm, they have not given like how to calculate support, then confidence, then lift and leverage. These are the different measure. ये अप्रियोरी अल्गोरिथम का काम खाली क्या होता है, कैंडिडेट जो रूल्स है एसोसिएशन रूल को जनरेट करके देना, लेकिन वो रूल कितना अच्छा है या नहीं ये हम मेजर के साथ चेक करते हैं। इसके लिए एल्गोरिथम में वो मेजर्स का यूज नहीं किया गया है। सो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन अप्रियोरी अल्गोरिथम, तो आपको सिंपल एक तो ये एल्गोरिथम लिख के एक्सप्लेन करना, या फिर आपको छोटा सा एग्जांपल लेके और सिर्फ कैंडिडेट जनरेशन की स्टेप एंड प्रूनिंग के स्टेप इतना ही एक्सप्लेन करना है, 2 to 3 स्टेप तक, और बाद में जो रूल जनरेट होता है दैट्स इट। लेकिन वो रूल से सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट एंड लीवरेज ये जब तक पूछा नहीं जाता है ये आपको निकालने की जरूरत नहीं। व्हेन दे आस्क टू find out these values, then and then you have to calculate that thing. Okay, so this is all about how to find out association rule using a priori algorithm and how to find out the strength of that algorithm using the 4 measure. So can anybody tell me like what are these 4 measure? क्या importance है ये 4 measure का? What is the use of confidence? What is the use of support? What is the use of lift and what is the use of leverage? लिफ्ट की वैल्यू क्या अगर है तो आप बोलोगे कि वो रूल अच्छा है। लिफ्ट की वैल्यू greater than 1. Greater than 1. very good, very good. If the value of lift is greater than 1, then you can tell that that rule is stronger. If I talk about leverage, Towards the one. Nearer to 1. Positive one. very good, towards positive one. one. Very good, very good. Because the leverage value is going from -1 to +1. माइनस के साइड में जाएगा उतना अच्छा नहीं है वो रूल, जितना पॉजिटिव के साइड में जाएगा 1 की तरफ वो रूल उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड व्हाट अबाउट सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस? More the value of support. Greater the value. 0.5 value. वेरी गुड। जितनी सपोर्ट की या कॉन्फिडेंस की वैल्यूज जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही वो रूल क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। देयर इज नो उसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं दिया है, जितना ज्यादा है उतना वो अच्छा होता है। ओके so we'll just finally again see what are the application of association rule। ये हमने starting of the lecture already हमने देखा था। so the market basket analysis this can be used in the application such like for better merchandising means products to include and excluding from inventory each month। हर मंथ में आपके सुपरमार्केट में या आपके शॉप में कौन से आइटम्स है जो इंक्लूड करने चाहिए, कौन से आइटम है जिनका सेल अच्छा नहीं है उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, उसके लिए यूज होता है। सेकेंड वन, the placement of product, how your product should be placed in your supermarket. Next can be a cross selling, upselling. Then promotional program, when you want to give some discount, give some promotional offer, so you should know like for which product you have to give the discount which will increase your profitability. Then again association rule can also be used for recommendation system, means online e-commerce system like Amazon and Netflix. It can be also used for the clickstream analysis from web usage log files. Generally Google use these things when they want to find out like which documents are generally searched together by the user. Then website visitor to page X click on link ABC more than on link D, E, F, means if you have a web page called as X, any web page, and there are having total 6 links. So you can analyze from this web page which links are more probably liked by a customer or a user to be click rather than another. So here they have given like if there are total 6 links, you can say that the 3 links are more visited than this other link. So you can place this link on your web page at top of your page or at certain
like at certain place where you want that your customer or your user should also read some other content from your web page, तो वहां पे ही आप क्या करो, उस लिंक को वहां पे डाल सकते हो ताकि आपके वो कंटेंट ज्यादा रीड हो या फिर वो लिंक्स को ज्यादा यूजर क्या करेगा, यूज कर सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट लाइक एप्लीकेशन वेयर यू कैन यूज दिस. द नेक्स्ट point is validation and testing. Means whatever the rule you have generated, how you can test and validate that that rule is really good. So the frequent and high confidence, okay, means यहाँ पे confidence की value या support की value जितनी high होगी in item set are found by pre-specified minimum support and minimum confidence level. So you have to find out the high confidence values, then measures like lift and leverage then ensure that interesting rules are identified rather than coincidental one. खाली support और confidence cannot give you a proper rule. काफी बार ये support और confidence जो rule आपको generate करके देते हैं वो coincidentally भी लोगों ने वो item साथ में purchase किए हुए हो सकते हैं, लेकिन अगर आप lift और leverage ये major use करते हो, so they can give you, these rules are really useful, they are not by chance or by coincidentally. Then some of the remaining rules may be considered subjectively uninteresting. जैसे आपने जो example solve किया होगा, you have find out 3 rules and from 3 rules you have conclude that only one rule is more useful and other 2 rules are not useful or not more interesting. So after a priori algorithm you find out 3, 4, 5 rules which are generated, but interesting can be 1 or 2 after finding lift and leverage, and other rules we can tell that they are not interesting, they are uninterested, means they cannot give you the profitable action. Again, some rules are also not useful, like I have given here example, paper tends to pencil. यानी जब भी कोई कस्टमर पेपर खरीदेगा तो वो काफी बार क्या करेगा, खरीदेगा वो पेन या पेंसिल. तो ये रूल किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सुपर मार्केट वाले को या किसी को. दिस इज एन rule which is known by everyone, so this is not an interesting rule. तो आपका algorithm ऐसा होना चाहिए कि उसने hidden pattern को लेके आना चाहिए कि जो जनरली लोगों को पता नहीं होता. ये हमको पता है कि पेन और पेपर या फिर पेपर एंड पेंसिल, पेपर एंड पेन, ये साथ में खरीदने वाली चीजें, ये सबको पता है, लेकिन आपके एल्गोरिथम ने ऐसा रूल जनरेट करके देना चाहिए जो जनरली लोगों को नहीं पता है, हिडन पैटर्न से. देन यू कैन टेल दैट योर एल्गोरिथम इज रियली यूजफुल. So for that you require an expertise knowledge, subjective knowledge in that domain. जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर ड्राइंग के रिलेटेड सुपरमार्केट है, तो ड्राइंग में बहुत सारे अलग अलग मटेरियल आते हैं, तो आपको उसका एक्सपर्टाइज होना चाहिए. अगर आपको उसके ऊपर अल्गोरिथम आप अप्लाई करके और उसका इंटरेस्टिंग रूल फाइंड आउट करने वाले हो, तो यू रिक्वायर सम सब्जेक्टिव नॉलेज इन दैट. The next is diagnosis in that they have given that although the a priori algorithm is easy to understand and implement, some of the rules generated are uninteresting or practically useless. A priori algorithm भले ही बहुत easy है, very easy to understand and implement. Implementation के लिए भी आपने देखा होगा बहुत small उसके steps है, but इसका एक इशू है कि इसमें जो रूल्स जनरेट होते हैं हर रूल इंटरेस्टिंग होगा ही या प्रैक्टिकली यूजफुल होगा, ये जरूरी नहीं है. मेनी रूल्स आर प्रैक्टिकली यूजलेस ऑल्सो. देन सेकेंड प्रॉब्लम विद दिस algorithm is that some of the rules may be generated due to coincidence relationship between variable. मतलब हर बार यूजफुल होगा जरूरी नहीं, काफी बार coincidentally वो आइटम्स लोगों ने साथ में खरीदे होंगे जिसके वजह से वो रूल जनरेट हो सकता है. But the measures like confidence, lift and leverage should be used along with the human insight to address this problem. ऊपर ये दोनों जो प्रॉब्लम मैंने बताया, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीनों मेजर्स हम लोगों ने सीखे कि इफ यू अप्लाई दिस 3 मेजर्स तो हम अनइंटरेस्टिंग रूल को निकाल के सिर्फ इंटरेस्टिंग रूल जो रहेंगे उसके साथ कम अप हो सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एसोसिएशन रूल. दैट इज another problem with association rule is that in phase 3 and 4 of data analytics life cycle, do you remembering the data analytics life cycle 6 phases are there? 6 phases हमने सीखे थे, उसमें से क्या था phase 3 and phase 4? कौन बताएगा?
Come on, students. In your data analytics life cycle, there are total 6 phases are there. Okay. Apart from that 6 phases, I am asking what is the name of phase 3 and phase 4? Madhura. Model planning. Model building. Yes. Model building. Very good. Model preparation. Third Data one is preparation. model planning and fourth one is model preparation. Very good. So these are the three actually 3 and 4 phases. So they have given that there is a some problem using association rule. अगर आपने कोई एक प्रोजेक्ट लिया है डेटा एनालिटिक्स का जिसमें आपने कंसिडर किया कि आप association rule यूज करने वाले हो. So in phase 3 we are planning मॉडल प्लानिंग, फेज 4 में हम मॉडल बिल्डिंग करते. तो हमने थर्ड फेज में डिसाइड किया कि हम ये प्रॉब्लम जो भी हमको दिया गया है इस डेटा एनालिटिक्स का प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के लिए हम एसोसिएशन रूल यूज करेंगे. ये हमने फेज 3 में बोला. फेज 4 में हमने बोला कि ओके अब हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है. सो फेज 4 इज बिल्डिंग योर मॉडल मीन्स एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर मॉडल. तो हमको एसोसिएशन रूल जो है ये बिल्ड करना है. ओके. Here the team must specify the minimum support. हमने देखा कि जो एल्गोरिथम है एसोसिएशन रूल का एल्गोरिथम कब रन होगा, आपके पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट. अगर मिनिमम सपोर्ट दिया ही नहीं है तो आपका एसोसिएशन रूल का एल्गोरिथम आप या प्रियोरी एल्गोरिथम आप रन ही नहीं कर सकते. ओके. सो फॉर मेकिंग दिस मॉडल वर्किंग यू रिक्वायर टू गिव द मिनिमम सपोर्ट prior to your model execution. एक्चुअल मॉडल एग्जीक्यूशन के पहले आपको मिनिमम सपोर्ट देना पड़ता है तो ही आपका एल्गोरिथम रन होता है. लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जैसे आपको देखो कल मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें मिनिमम सपोर्ट मैंने 2 दे दिया था. जस्ट कंसिडर अगर आपके पास बुक होगी और मैंने बोला कि मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू 5 है. ओके. तो अब आप जस्ट चेकआउट करो कि अगर मिनिमम सपोर्ट 5 है तो आपका रूल जनरेट होगा या नहीं होगा. शायद एक भी रूल जनरेट नहीं होगा या फिर एक आधा रूल जनरेट होगा. तो अगर आपने मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा दे दी तो बहुत कम रूल आएंगे. अगर मैंने मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू 1 डाल दी तो यू विल हैविंग द lots of many rules which are generated. So the minimum support we don't know which value is a proper value. So whenever we give a minimum support value prior to your model execution, it can generate either too many or too few rules. एक तो बहुत कम रूल आएंगे जिसका यूज नहीं होगा या फिर इतने ज्यादा रूल आएंगे कि जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो. दिस इज अ मेन प्रॉब्लम विथ association rule. So in related research, a variant of the algorithm can use a predefined target range for the number of rules so that the algorithm can adjust the minimum support accordingly. Okay. तो उन्होंने क्या किया, अप्रियोरी एल्गोरिथम के बहुत सारे बाद में वेरिएंट निकले होंगे. ये आपको शायद डेटा माइनिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें रहेंगे कि अप्रियोरी के आगे बहुत कौन से एल्गोरिथम्स है जो जिन्होंने अप्रियोरी का ये जो प्रॉब्लम है ये ओवरकम किया. तो उन्होंने क्या किया, रिसर्चर ने एक ऐसा इस एल्गोरिथम का एक थोड़ा सा चेंज ऐसे किया कि जिसमें मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू हम लोग नहीं देते हैं. ओके. इसमें खाली क्या किया जाता है, प्री डिफाइंड टारगेट रेंज जो है वो डिफाइन किया जाता है कि हम बोलते हैं कि मुझे है ना ये डेटा सेट है, ये डेटा सेट से मुझे 5 इंटरेस्टिंग रूल जो है ये मुझे चाहिए है. तो वो जितने रूल्स आपको चाहिए उस रूल के हिसाब से वो ऑटोमेटिक मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू क्या करता है, एडजस्ट करता है. सो दिस इज अ वेरिएंट ऑफ अप्रियोरी एल्गोरिथम जिसमें हम मिनिमम सपोर्ट की बजाय हम बताते हैं कि हमको मिनिमम कितने रूल्स चाहिए है आप हमारे सुपरमार्केट के लिए 1 2 3 4 5 जैसे आप जो भी वैल्यू दोगे आपका एल्गोरिथम उसके हिसाब से मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू क्या करेगा, चेंज कर लेगा. So algorithm requires the next problem. Okay, ये फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, रेड में जो दिया है ना दैट इज अ प्रॉब्लम और ग्रीन कलर में जो दिया है वो उसका सॉल्यूशन है. तो फर्स्ट 2 में जैसे रेड में जो मैंने प्रॉब्लम दिया था उसका सॉल्यूशन हमने देखा. फिर सेकंड यहाँ पे जो रेड में प्रॉब्लम मैंने दिया था उसका सॉल्यूशन मैंने बताया कि क्या रिसर्चर ने किया है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो दैट इज गिवन, दैट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज एल्गोरिथम रिक्वायर्स अ स्कैन ऑफ द एंटायर डेटाबेस टू ऑब्टेन द रिजल्ट. Accordingly, as the database grows, it takes more time to compute in each run. आपको जो मैंने एग्जांपल दिया, it's having highly 5 or 6 ट्रांजैक्शन. अब मैं अगर आपको एग्जांपल ऐसा दूं जिसमें 1000 ट्रांजैक्शन है और मैंने बोला कि अब इसमें से रूल फाइंड आउट करो, आपको कितना टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स?
ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम टाइम लगेगा, लगेगा। राइट? क्योंकि आपका अभी टेबल Yes, का ma'am. साइज बहुत छोटा है, 6 7 8 9 10 इतने ही ट्रांजेक्शन दिए। लेकिन अगर आप खाली बिग बाजार का एग्जांपल लो, 1 डे में कितने कस्टमर्स आते हैं? मोर देन 1000। अगर 1 मंथ कंसिडर करें या फिर हम 1 ईयर का कंसिडर करें, इट इज हैविंग मोर देन 1 लाख और 10 लाख रिकॉर्ड्स इन द ट्रांजेक्शन। और इतने बड़े ट्रांजेक्शन टेबल में से अगर मैंने बोला आपको रूल फाइंड आउट करो, इवन इफ यू आर यूजिंग एन कंप्यूटर ऑल्सो, जितना इनपुट का साइज बढ़ता है उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी सीखा होगा। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर नंबर ऑफ इनपुट। तो जितने ट्रांजैक्शन ज्यादा उतना टाइप क्या हो जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। सो दिस इज अगेन अ मेन प्रॉब्लम विथ अप्रियोरी एल्गोरिथम, क्योंकि हर स्टेप में पूरा ट्रांजैक्शन टेबल उसको स्कैन करना पड़ता है। पहली बार सिर्फ एक आइटम कितनी बार आया है, सेकेंड टाइम 2 आइटम साथ में कितनी बार आया है, थर्ड स्टेप में 3 आइटम साथ में, मतलब हर टाइम आपको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा ट्रांजैक्शन टेबल क्या करना है, स्कैन करना है, विच रिक्वायर वेरी ह्यूज टाइम। ओके, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे हैव गिवन अ 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। ये क्वेश्चन 1 या 2 बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अप्रियोरी एल्गोरिथम एंड हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा, ग्रीन में उसका सोल्यूशन देखा, सेकंड प्रॉब्लम देखा, ग्रीन में उसका सोल्यूशन देखा, थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताया उसके सोल्यूशन उन्होंने 5 अलग अलग स्ट्रैटेजीज दिए हैं। सो वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग मतलब पूरा डेटाबेस कंसीडर करने के बजाय आप क्या करो, आपका जो पूरा डेटाबेस है, ट्रांजैक्शन टेबल है, ट्रांजैक्शन डेटाबेस है, उसको पार्ट में डिवाइड करो, आइदर इन अ 2 पार्ट 3 पार्ट। जितना बड़ा ट्रांजैक्शन टेबल उतने ज्यादा पार्टीशन में उसको डिवाइड करो एंड रन योर एल्गोरिथम ऑन दैट पार्टीशनल डेटाबेस। तो आपको खाली कम डेटा सेट के ऊपर ही क्या करना पड़ेगा, वो एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा जो आप पैरेलली कर सकते हो। सो अगर मैंने 5 पार्टीशन में रन कर दिया तो आपका एल्गोरिथम 5 जगह पैरेलली चलेगा। सो कम टाइम पे वो रन हो जाएगा। दैट कैन बी वन। सेकेंड कैन बी अ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में क्या किया जाता है कि पूरा डेटा सेट के बजाय कुछ मिनिमम रोज जो है, कोई भी रैंडम रोज जो है वो उसमें से हम कंसिडर करते हैं और सिर्फ उतने ही रोज के ऊपर हमारा अप्रियोरी एल्गोरिथम रन करते हैं और उसमें से जो रूल आएगा वो हम पूरे डेटाबेस के लिए एप्लीकेबल है ऐसा हम कंसिडर करते। दैट कैन बी अ सेकेंड सॉल्यूशन। थर्ड इज अ ट्रांजैक्शन रिडक्शन। इसमें क्या किया जाता है कि पहले ही हम बता देते हैं कि ऐसे ऐसे ही ट्रांजैक्शन लो जिसमें मिनिमम 4 आइटम्स या 5 आइटम्स आए रहेंगे। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें खाली 1 या 2 ही आइटम परचेस किए हैं तो उसको निकाल देते हैं। ओनली द ट्रांजैक्शन विच इज हैविंग मिनिमम की आइटम सेट, only that transaction is going to be considered for the a priori algorithm. This is a third number of thing. Fourth is a dynamic item set. तो dynamic item set में अगर जैसे जैसे new rows add होते हैं, only that new rows are to be considered to find out the frequent item set, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक आइटम सेट काउंटिंग। एंड लास्ट इज अ हैश बकेट और हैश बेस काउंटिंग, जो आपने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा, जिसमें डेटा को बकेट्स में डिवाइड किया जाता है। सो दे हैव यूज्ड दैट only consider the hashing bucket having the count of key item set, और जिस बकेट का आइटम सेट का जो काउंट है वो की आइटम सेट से लेस होगा वो बकेट्स को कंसिडर नहीं करना है अप्रियोरी एल्गोरिथम से। So likewise, these are the 5 different approaches they have given. Using these approaches, you can reduce the transaction size and the time of your a priori algorithm will be increased. So you will get the output in a minimum time. So I hope you have understood this point. ओके ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसको एक शॉर्ट में रिपीट करती हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अ प्रियोरी एल्गोरिथम और डिसएडवांटेज ऑफ अ प्रियोरी एल्गोरिथम एंड हाउ टू सॉल्व इट। सो वेरी फर्स्ट इज दैट, पहला क्या प्रॉब्लम है कि इसमें काफी बार ऐसे रूल जनरेट होते हैं जो यूजलेस होते हैं प्रैक्टिकली या अनइंटरेस्टिंग होते हैं। ओके और ऐसे भी रूल आते हैं जो कोइंसिडेंसली वो आइटम परचेस हुए थे लेकिन फिर भी उसका रूल जनरेट हो जाता है। ये प्रॉब्लम है अप्रियोरी का। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर अप्रियोरी एल्गोरिथम जो आपके रूल आया है उस रूल का आप कौन से मेजर निकालो,
कॉन्फिडेंस, लिफ्ट एंड लीवरेज। तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, स्टेप 1। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। सेकेंड प्रॉब्लम उन्होंने क्या बोला है कि इसमें हमको मिनिमम सपोर्ट जो है ये पहले ही बताना पड़ता है अप्रियोरी एल्गोरिथम में। तो मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू अगर बहुत कम दी तो आपके बहुत ज्यादा रूल जनरेट होते हैं। मिनिमम सपोर्ट की वैल्यू अगर आपने ज्यादा दी तो आपके बहुत कम रूल क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ आइदर वेरी टू फ्यू रूल और टू मेनी रूल्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए रिसर्चर ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ मिनिमम सपोर्ट, गिव मिनिमम रूल कि आपको कितने रूल्स चाहिए है। और वो एल्गोरिथम क्या करेगा, खुद को ऐसे ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा मिनिमम सपोर्ट को कि ऑटोमेटिक सिर्फ उतने ही रूल्स वो जनरेट करके देगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, जैसे से ट्रांजैक्शन टेबल जो है इसकी साइज इंक्रीज होती जाती है, आपका अप्रियोरी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए लगने का जो टाइम है दैट आल्सो इंक्रीजेस। So how to reduce the transaction size? So for that they have given 5 different approaches. One is partition the database and parallelly run your algorithm on all partition. Second, take only the sample of rows from your database and perform a priori algorithm only on that samples. Third is reduce the transaction. So how you are going to reduce the number of transaction? Check out, give some size of k. That means minimum every transaction should have at least 3 items or 4 items. So the transaction which is having the less items in its transaction, you don't need to like use that transaction in your a priori algorithm. तो बहुत कम transaction आप उसमें use करोगे। Next is only consider the newly added candidates or newly added items to find out the frequent item set. And next, divide your data in a buckets and give the value of k. Whoever bucket whose size is less than k, don't consider that bucket for the a priori algorithm. So this is the end of our first part of third unit, जिसमें हम लोगों ने देखा what is association rule, how to find out a association rule, how to use an a priori algorithm to find out the association rule, what is mean by candidate rule. ओके जो कैंडिडेट रूल मतलब जो एसोसिएशन रूल के बाद जनरेट किया जाता है, हाउ टू फाइंड आउट और हाउ टू मेजर दैट रूल बाय यूजिंग कॉन्फिडेंस, लिफ्ट, लीवरेज एंड सपोर्ट, and validation and testing, and last one is a diagnostic. One point is remaining from this, that is called as the case study of transaction. यहाँ पे हमारा एक point है, that is a case study of transaction in grocery store. तो ये आपके बुक में दिया है. ओके, आई एम जस्ट शोइंग नाउ द बुक एंड द पेज नंबर. ये आपको इंडिविजुअली वो पेजेस रीड करने हैं बिकॉज इट्स अ केस स्टडी एंड शुड बी डन बाय द स्टूडेंट्स. आपको वो ट्रांजैक्शन के जो भी पेजेस मैं आपको दूंगी बुक के, वो आपको रीड करने हैं जो उन्होंने आर प्रोग्रामिंग में दिया. एंड इन योर थर्ड ईयर ऑलरेडी यू नो द आर प्रोग्रामिंग क्या होता है, कैसे प्लॉट जनरेट किया जाता है. उसको पढ़ो, उसको समझो. उसको समझने के बाद आइदर इन द प्रेजेंटेशन या फिर आपके बुक में भी अगर आपने नोट्स निकाले हैं 1 और 2 पेज के इस केस स्टडी के, तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो गूगल क्लासरूम में. तो गूगल क्लासरूम में मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको मैं, जैसे मैंने जीना का केस स्टडी का एक पॉइंट बनाया था, वैसे मैं ट्रांजैक्शन इन ग्रोसरी स्टोर यूजिंग एसोसिएशन रूल ये पॉइंट बनाऊंगी जिसमें आपको अपलोड करना रहेगा. आइदर यू कैन यूज अ पीपीटी, आइदर यू कैन अपलोड अ नोट्स, यानी आपको जो समझ में आए वो आपको करना है. नाउ वेयर यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस पॉइंट, तो ये मैं आपको बताती हूँ आपको कहाँ से मिलेगा. ओके, सो जस्ट गो in the blog, on my blog you can find out the data analytics. data analytics पे क्लिक करो, यहाँ पे ई बुक करके मैंने दिया हुआ है. ओके, ई बुक पे क्लिक कीजिए एवरीवन. ओके, ई बुक पे क्लिक करने के बाद नाउ दिस ऑल आर लिंक्ड, जितने भी पॉइंट्स दिए हर एक को लिंकिंग दिया है. तो यहाँ पे आप देखो कि 5th नंबर का जो चैप्टर है उसमें उन्होंने एसोसिएशन रूल दिया है. एंड यू कैन फाइंड आउट हियर 5.5 एन एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन इन ग्रोसरी स्टोर. तो ये 5.5 पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये चालू हो जाएगा. 183 पेज नंबर पे है. तो उन्होंने बताया है कि क्या डेटा सेट उन्होंने यूज किया हुआ है. देन आर प्रोग्रामिंग में उन्होंने क्या अलग अलग, जैसे दिस इज द डेटा सेट दे हैव गिवन.
फिर फ्रीक्वेंट आइटम सेट कैसे जनरेट किए हैं, क्या मिनिमम सपोर्ट उन्होंने लिया हुआ है. सो लाइक वाइज जस्ट 5 to 6 पेजेस आर देयर, यू हैव टू गो थ्रू दिस, कैसे विजुलाइज किया है एंड जस्ट रीड दिस. उसके स्मॉल नोट्स निकालो या स्मॉल आपके प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप इसको यूज बना सकते हो एंड यू हैव टू अपलोड इट इन योर गूगल क्लासरूम. अगेन आई वांट टू शो यू अ गूगल क्लासरूम where I have just added slow learner, fast learner and compulsory learner assignment. Many students have given me like give the list of slow and fast learner. Okay, it's very easy. आप आपके गूगल क्लासरूम पे जाओ, उसमें क्लास वर्क में जाओ. अगर आपको आपके क्लास वर्क में स्लो लर्नर का असाइनमेंट दिख रहा है, इसका मतलब आप स्लो लर्नर हो. आपके इसमें अगर आपको फास्ट लर्नर का असाइनमेंट दिख रहा है तो आप फास्ट लर्नर हो. अगर ये आपको ये दोनों भी नहीं दिख रहे हो, इसका मतलब आप एवरेज लर्नर हो, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली क्या किया है, फास्ट लर्नर जो है ये मैंने जो स्टूडेंट है जो फास्ट लर्नर निकले हैं उनको ही असाइन किया है. अगेन स्लो लर्नर सिर्फ ये उन लोगों को ही असाइन किया है, 12 स्टूडेंट को, कि जो स्लो लर्नर निकले. अब ये स्लो लर्नर कैसे निकाले वो भी मैं बताती हूँ. तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर डेटा एनालिटिक्स हाउ आई हैव कंपाइल्ड स्लो लर्नर एंड फास्ट लर्नर. इसके अलावा कंपल्सरी असाइनमेंट ये सबको सॉल्व करना है. दिस इज हैविंग अ total 6 question in that. Okay, 1 question from every 1 unit. फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 से होगा. यूनिट 2 का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने आपको एज अ होम असाइनमेंट सबको दिया था सॉल्व करने के लिए. अगेन 3rd नंबर का क्वेश्चन भी मैंने अभी फ्राइडे को आप सबको सॉल्व करने के लिए दिया था. इसके लिए मैंने बोला ये बुक में सॉल्व करो, ताकि आप जैसे जैसे हर यूनिट के बाद सॉल्व करते जाओगे तो आपका कंपल्सरी असाइनमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा. देन अगस्त डिफॉल्टर असाइनमेंट. तो 4 स्टूडेंट है जो डेटा एनालिटिक्स में डिफॉल्टर में आ रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में. तो सिर्फ वो 4 स्टूडेंट को ही मैंने वो असाइन किया, ये सबको दिखाई नहीं देगा. तो आपके क्लासरूम में आपको जो दिखाई देगा मतलब आप आइदर स्लो होगे, फास्ट होगे या एवरेज लर्नर में होगे. अभी हम लोगों ने ये कैसे कंपाइल किया है, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू दैट थिंग. इसमें हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट के लिए प्री रिक्विसाइट सब्जेक्ट कौन सा है. ओके, सो इफ यू गो in your syllabus you can find out data analytics is depend on your database management system subject. ये उसका प्री रिक्विसाइट है. तो हम लोगों ने क्या किया है इसमें कि DBMS, आप लास्ट ईयर में DBMS में सर ने आपको लाइक इन मॉक इन सेम एग्जाम, मॉक एंड सेम एग्जाम, इन सेम का पेपर, एंड सेम का पेपर, ये चारों रिजल्ट कंबाइन करने के बाद आपको एक फाइनली आपका एक इवैल्यूएशन है जो किया होता है, और वो इवैल्यूएशन एज अ इनपुट में डेटा एनालिटिक्स के लिए इसमें कंसिडर करती हूँ. ओके, इफ आई जस्ट गो हियर, दिस इज एन योर DBMS शीट. So for every subject we just prepare a student progress report, जिसमें हर स्टूडेंट का उसने प्री रिक्विसाइट टेस्ट दिया है तो कितने मार्क्स है, कंपल्सरी असाइनमेंट 1, 2, स्लो फास्ट लर्नर इन सेम के मार्क्स, आपके जैसे ये आपके फाइनल यूनिवर्सिटी के इन सेम के मार्क्स है या फिर एंड सेम के मार्क्स है, तो वो सब आते हैं. और उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है जिससे यहाँ पे फाइनली लास्ट में पता चलता है कि वो स्टूडेंट स्लो है, फास्ट है या एवरेज है आफ्टर अ होल सेमेस्टर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट. तो ये जो वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू जो सर ने कंपाइल की हुई है, ये एज इट इज मैंने इसको उठाया है और यहाँ पे आपको एज अ स्टूडेंट को यहाँ पे उसको असाइन किया हुआ है. और सेम ये चीज हमने गूगल क्लासरूम में आपको असाइन करके रखी हुई है. तो नो नीड टू आस्क मी द लिस्ट ऑफ स्लो एंड फास्ट लर्नर. you just check out your Google Classroom, you will find out you are coming in which category. और ये जो स्लो एंड फास्ट लर्नर के भी जो असाइनमेंट है दे आर अगेन डिपेंड ऑन यूनिट वाइज क्वेश्चन. तो जैसे जैसे हमारा यूनिट खत्म होते जाएगा आप उसको कंप्लीट करते चलो. जैसे 6 यूनिट खत्म होंगे आपको वो स्कैन करके उसके बाद अपलोड करना होगा. बट फॉर डिफॉल्टर असाइनमेंट, अगर आप अगस्त के डिफॉल्टर हो तो आपको सितंबर मंथ खत्म होने के पहले उसको सॉल्व करके अपलोड करना रहेगा. बट फॉर कंपल्सरी स्लो एंड फास्ट लर्नर असाइनमेंट ये आपको अपलोड करना है जब आपके टोटल ऑल 6 यूनिट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही आपको अपलोड करना है. बट दैट मीन द टाइम सॉल्व इट यूनिट बाय यूनिट. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीवन. सबको समझ में आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है. मेरे साइड से आज का लेक्चर तो खत्म हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा न्यू पॉइंट के ऊपर है, रिग्रेशन के ऊपर, जो हम. यस, With your permission, please. हाँ, यस सर.
I was listening to you also. Can I see? Can I ask them to have the photographs? I want to see their faces. Yes, sir. Selfie mode. Yes, sir. Before ending your session, na? Yes, sir. Yes, sir. Please request them to put their videos on. Students, just give the reply to the principal, sir. Have an interaction with them. Sir, मैंने रहना है कि मैंने You will be there. You are there. Hello? You no problem. Don't leave. Ask them to put their videos, that photos, na videos. ओके ओके सबजन आप आपका जो वीडियो है ना वीडियो ऑन करो एवरीवन जस्ट स्टार्ट योर वीडियो वेरी फास्ट फास्टली स्टार्ट करो क्योंकि लास्ट 1 मिनट बचा है हमारा तो एवरीवन जस्ट स्टार्ट योर वीडियो वेरी क्विकली Yes. त्यांचे चेहरे बघायचे आहेत मला सगळ्या मुलांना विद्यार्थ्यांचे किती दिवस झाले घरी बसले. Yeah, Siddhi. एवरीवन Hello, sir. Good morning. Hello. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, How are sir. you? Good morning, sir. See, I was listening to madam. She was asking about the regression models and all. These regressions are very important for machine learning, artificial intelligence. So be careful. Be serious. And before appearing for this lectures, online lectures, I will